Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important series of revision going on. In last video lecture, that is in part first video lecture, you have seen I have begun the second set of question paper. The question paper set 1 is actually taken out, but it is the second set of question paper. The first set was from Kendriya Vidyalaya Sangathan and the second set was taken out from the sample paper. That is actually was related to syllabus 2014. So most of question from this question paper may be not related to question 2020-21, and that kinds of question I will not actually revise. So you need to focus on that question even when that are available in our syllabus. Now back to the question paper and revise them thoroughly. The section 1 of question paper was over in past video. The ICBN, ICZN, it is not in our syllabus. The question 2 is over. The dikaryon, question 3, essential amino acids. Who proposed the cell theory? Cell theory, I have told you, it is very important question. Give the significance of zygote in stage of meiosis. ये भी हो चुका था हमारे लास्ट स्टेजेस में, ठीक है. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. किंगडम इसके आइडेंटिफाई करना, बैक्टीरिया का, पक्सिनिया, ग्रेमिनिस, यूग्लिना, डायटम्स, ठीक है. पेप्टाइड बॉन्ड भी हो चुका था लास्ट में, मैंने बताया था. डिफरेंट बिटवीन फॉलोइंग, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी थी. पॉलीपेप्टाइड, ड्रॉ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये भी हो चुका था. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटिलिस, ये भी हो चुका था लास्ट वीडियो लेक्चर में, मैंने बताया था. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है और ये आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देंगे अगर आप इसको नहीं रिवाइज करते हैं, ठीक है. ह्यूमन हार्ट, ये सब भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है. नेक्स्ट आते हैं. गिवन द सिग्निफिकेशन ऑफ फॉलोइंग. बॉटनिकल गार्डन म्यूजियम, इस सिलेबस में नहीं है. होमोपॉलीमर, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड वन मॉडिफाइड शुगर, इसको भी मैंने बताया था. एन ग्लूकोसामाइन, ये वन मॉडिफाइड शुगर है, ठीक है. फ्रुक्टोज का पॉलीमर इनुलिन होता है. होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स, सेलुलोज, ये सब भी लास्ट वीडियो में बताया था. नेक्स्ट आते हैं. ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. एक्चुअली में पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है. 2 वीडियो इस सेट्स के ऑलरेडी मैं रिवाइज करा चुका हूँ, ठीक है. गॉबलेट सेल्स, रेनिन, और रेनिन में मैंने डिफरेंट बताया था ना कि ये रेनिन अब आपके सिलेबस में नहीं है. ये वाला रेनिन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रेनिन है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. एक्सप्लेन द गैसियस एक्सचेंज इन मैन, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में चैप्टर 17 है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखो बेटा, करने क्या है इसमें. एज आई हैव टोल्ड यू, द alveoli of human being is somehow the balloon like structure. Near the surface of each alveoli there is a blood capillary. So this one is the blood capillary and this is the alveoli. If the lungs is filled by the air, then the partial pressure of carbon dioxide and oxygen is play very important role. Listen, partial pressure of carbon dioxide and oxygen play very important role over here. Now the oxygen, due to high partial pressure, cross the 3 different layers from alveoli to blood capillaries. The first layer is endothelium of, it is the epithelium of alveoli. Second layer is the basement membrane between alveoli to blood capillary, and third is the endothelium of blood capillaries. So the oxygen, by crossing 3 different layers, reach to the blood capillary, and it will later trapped by the RBC, and this RBC carried the oxygen to the different parts, because in the region of alveoli and in the region of blood capillaries the partial pressure of oxygen is remain very high, ठीक है. ऐसे आपको एक्सप्लेन कर लेने, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हुए एक्सप्लेन करेंगे. पार्शियल प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हुए करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं. डिफरेंट बिटवीन
फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज ऑन द बेसिस ऑफ माइसिलियम एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को डिफाइन करना है, और किस बेस पे डिफाइन करना है, माइसिलियम और स्पोर्स के बेस पे। देखो बहुत सारे 4 ग्रुप है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बीच में डिफरेंट लिखना है। ठीक है, और आपको क्राइटेरिया क्या दे दिया, सिर्फ माइसिलियम और स्पोर्स को ही पॉइंट आउट करना है, सिर्फ उसी के बेस पे डिफरेंट लिखना है। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज एक ऐसा फंगस होता है, पहले माइसिलियम के बेस पे दोनों में डिफरेंट देख ले। फाइकोमाइसिटीज ऐसा एक फंगस होता है जिसमें सेप्टम नहीं होता, उसके माइसिलियम में सेप्टम नहीं होता है। और एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है बेटा, सेप्टम होता है, ऐसे बीच बीच में, ऐसे बीच बीच में क्या होते हैं, पार्टीशन होते हैं। और इसमें ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि ये सीनोसिटिक ठीक है अरेंजमेंट इसमें होता है। तो इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज में न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं, क्योंकि बीच बीच में पार्टीशन होता है। दूसरा, जो स्पोर्स के बेस में अगर डिफरेंस बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जूओस्पोर्स होंगे। और एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं, और इसके लिए एयर या वाटर ऐसे कुछ मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर, ये फाइकोमाइसिटीज तो वाटर में स्विम करते हैं, मोटाइल होते हैं, जूओस्पोर्स होते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये बेसिक डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा जनरली अगर पूछ रहा है तो एल्बिगो, फाइकोमाइसिटीज में एल्बिगो, और एस्कोमाइसिटीज में आपका एस्परजिलस आता है। ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलियम आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया है, माइसिलियम के बेस पे ए सेप्टेट और एस्कोमाइसिटीज सेप्टेट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्पोर की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, जूओस्पोर्स, और इसमें क्या होता है, नॉन मोटाइल एस्कोस्पोर्स। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ आप सेल में डायग्राम तो जरूर पढ़ लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। डायग्राम आप एग्जाम में आते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत इजी, आई होप सबसे इजी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है, आसानी से बन जाता है। इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में आपको बता दो, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो ये जो बीच में मैं बना रहा हूँ, ये फिंगर लाइक पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या हम लोग बोलते हैं, क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, और ये बीच में क्या होता है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है। यहाँ पे भरा होता है मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूमेन। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, 2 लेयर होते हैं, क्रिस्टी होते हैं, और इस पर F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लेंगे बुक में, या उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप बना भी लें और उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, कह रहा है रेस्पिरेशन के टर्म्स में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है भाई, दिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 17 जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं, चैप्टर 16 का मैटर है, फिर भी आप जान लीजिए। पैंक्रियाटिक जूस से सबसे पहले एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, और ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, और
ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स, गिव इट्स स्ट्रक्चर। ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ लिपिड्स और फैट्स having 3 fatty acid molecule and 1 glycerol molecule. When 3 fatty acid molecule react with 1 glycerol molecule, the products called triglycerides. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहेंगे तो वीडियो लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ ट्राइग्लिसराइड्स की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स में आपने पढ़ा होगा कि ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग फैटी एसिड से। तो पहला मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है R2 के केस में, प्लस तीसरा मॉलिक्यूल क्या है OH R3 के केस में, ठीक है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो बनेगा क्या, बेसिकली मैं बना के बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं बॉन्ड बना के बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, ठीक है। और उस बॉन्ड में सिर्फ O रह जाएगा, H भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। H भी नहीं रह जाएगा वहाँ पे। देखो होता क्या है, ये C एक बॉन्ड CO R1 R2 और ये CO COO R3, ये हो गया ट्राइग्लिसराइड्स। ये क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। R1 R2 R3 वाला कोई कंपाउंड्स। तो इसको आप एग्ज़ाम में बना लेंगे। ये पोर्शन क्या है, 1 ग्लिसरॉल, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स के हैं। ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में फॉर्चुनेटली आने वाले हैं, ठीक है। इस पर आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फैट इन मैन इन शॉर्ट। सिलेबस में नहीं बेटा, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको नहीं आएंगे क्योंकि ये 16 का मैटर है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ECG, कह रहा है ECG को आप बनाना है, तो ECG को बना लेते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। ECG को ग्राफ हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। ECG एक आसान प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। यहाँ पे वेब्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा, P वेव, Q R S कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, ठीक है। ये जानना है कि P वेव, Q R S कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर से ये चीज़ें रिपीट करती जाएंगी, P वेव, Q R S कॉम्प्लेक्स T वेव, फिर यहाँ से P वेव, Q R S कॉम्प्लेक्स। तो ये बार बार ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। इस पे आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्लस इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 20, इस पे आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, प्लस इस पे एकदम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बी में क्या पूछा है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड भी कर देंगे अच्छे से लिंक। फिलहाल यही जाने कि 4 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं। पहला क्रोमोजोम्स होता है टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में एकदम होता है और टीलोमियर ऐसे 2 किनारे किनारे होते हैं। ये क्या होता है,
telocentric. So telocentric are the chromosomes in which the centromere will be at the tip and telomere at the border or at the terminal end. दूसरा टाइप क्या होता है कि शॉर्ट टीलोमियर होते हैं और थोड़े से एक लॉन्ग पेयर टीलोमियर होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक. इट मीन्स द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द टर्मिनल एंड. ठीक है. थर्ड टाइप क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक जो टीलोमियर थोड़ा सा बड़ा होता है और दूसरा जो है उससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि ये स्लाइटली टुवर्ड्स द मिडिल. इट मीन्स ये मिडिल पोर्शन है तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहता है क्या? सेंट्रोमियर. सो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. ये क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक. ये क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक. और लास्ट में हमारा क्या है? लास्ट में हमारा मेटासेंट्रिक. एकदम से सेंटर में अगर टीलोमियर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक. ठीक है. तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ये 1, 2, 3 एंड 4 टाइप की हमारा क्रोमोसोम मिल गया. हमने इस वीडियो लेक्चर में कुल अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक चीज़ें एकदम से क्लियर कर ली हैं. इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स अपना ज़रूर करें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.